Student, as I told you, very important chain in the first chapter of electrostatic, or chain is related to term electric. Electric means charge. In that chain, I told you about electric field intensity, and electric field lines. Now the last step of the chain is electric flux. Now what is mean by flux? It is the Latin word fluid, or it means to flow. Now which type of flow? Flow mean it is related to the number of electric field lines, which are imaginary lines. I explain you, around the charge there is a force. Strength of that force is called intensity, represented by E. Or by using force around the charge, limited force around the charge, and strength of that force, we draw imaginary lines. Those imaginary lines are called electric field lines. I explained you it all. So the imaginary electric field lines are used in term of flow. Flow mean number of electric field lines. So in this sense, we will define the electric flux in this way: number of electric field lines passing through some surface. अब क्या है हमारे पास? जो इलेक्ट्रिक टर्म है जो चार्ज के लिए यूज होती है, इससे रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको जो चेन एक्सप्लेन की वो चेन थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपसे कहा था एक चार्ज बॉडी के अराउंड लिमिटेड फोर्स होती है। उसी फोर्स की जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको हमने ई से यानी इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट किया था। चार्ज के अराउंड वेरिएबल फोर्स और लिमिटेड फोर्स को यूज करके हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से गुजरती हैं या सरफेस को फेस करती हैं या किसी सरफेस पे से फ्लो करती हैं, तो उन लाइंस के फ्लो को या सरफेस के को फेस करने को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सपोज दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और अराउंड दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are around this charge we have electric field. This is a radial electric field or radial electric force, or here we have also the strength of that force, which is called the intensity. Now by using the force around the charge or intensity of that force around the charge, when we draw imaginary lines, so those imaginary lines are called electric field lines. Look at here, this is the surface, or here we have, these all are electric field lines, and these lines are facing the surface in this way, or these lines are flowing through this surface. So number of lines, number of electric field lines flowing through the surface, passing through that surface or crossing through that surface is called electric flux. One more surface is here. Again, surface is in this way. These all are electric field lines, or lines are passing through this surface or facing this surface or flowing this surface. Which lines? Electric field lines. So number of electric field lines which are passing through this surface, those number of electric field lines are called the electric flux. जैसे मैंने आपको बताया कि एक चार्ज है, सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड इसकी फोर्स है जो ये खुद एक्सपीरियंस करता है, और ये लिमिटेड फोर्स है। इसी फोर्स की इंटेंसिटी को या इसी फोर्स की शिद्दत को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये फोर्स रेडियल है, मतलब हर तरफ है। ये फोर्स वेरिएबल है। फोर्स को यूज करके या फोर्स की स्ट्रेंथ को यूज करके हम ड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये रियल में नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं। और ये लाइंस जब हमारे पास किसी सरफेस को क्रॉस करती हैं, लाइक हेयर, लुक एट हेयर, सी हेयर, दीज आर द लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, या यहाँ पे देखें दीज ऑल आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये भी सरफेस से पास हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, फ्लो कर रही हैं।
तो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जो किसी सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस को फेस करें, किसी सरफेस को क्रॉस करें, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो एज आई टोल्ड यू, फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड, इट्स मीन फ्लो। विच टाइप ऑफ फ्लो? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस through any surface. Flow of electric field lines through any surface is called electric flux. Now come to the mathematical form of electric flux. Electric flux is represented by phi. This symbol is called phi, P-H-Y, phi. Electric flux phi is equals to E dot A, dot product of two vector quantities, E dot A. Dot product of two vector quantities is equals to scalar quantity. This scalar quantity is called flux, or it is represented by phi. So phi is the flux, E is the intensity of force around the charge through which we will draw the imaginary electric field lines, or A is the surface area. So as we will resolve this dot, so we will get EA cos theta. So phi is equals to EA cos theta. Phi stands for electric flux. E stands for electric field intensity around a unit positive charge, which is variable, which is different from different point. Or here A stands for surface area through which number of electric field lines will pass, or number of electric field lines will face this surface. Here we have one more factor, theta. Theta is the angle. Now which type of angle, that I will explain you. So mathematical form of electric flux is phi. Phi stands for flux. Flux means number of electric field lines. This is the quantity, number of electric field lines. So it is a scalar quantity, or it is equals to dot product of two vector quantities. E is the intensity around the charge, which we have to consider at every point. A is the area through which lines will pass. So this is also vector quantity, or result of these two vector quantities is equals to a scalar quantity, which is the flux. Flux stands for number of electric field lines. Number means quantity. Quantity of lines, amount of lines which will pass through any surface. Or when we will resolve this dot, then we will get this cos theta. You know this is in your first year syllabus. So dot product को रिजॉल्व करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ से फ्लक्स का फॉर्मूला यूनिट ड्राइव करना चाहूँ, तो we all know the unit of intensity is Newton per coulomb. I told you this in the topic of electric field intensity. The unit of intensity is Newton per coulomb, or unit of area is meter square. तो unit of flux is Newton per coulomb meter square. तो remember this is the mathematical form of electric flux. अभी मैंने आपको बताया कि फ्लक्स के लिए क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसके अराउंड उसकी फोर्स होनी चाहिए, फोर्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फोर्स और स्ट्रेंथ को लेकर जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और लाइंस जब किसी सरफेस या एरिया को फेस करती हैं, उसमें से फ्लो करती हैं, उसको क्रॉस करती हैं, तो उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो फ्लक्स एक्चुअली, ये जो फ्लक्स है फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स। फ्लक्स एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are according to the intensity or force around the charge, or those line will pass through any surface area. तो यहाँ पे हम कहते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस, विच लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस या एरिया से फ्लो करेंगी। और लाइंस हमें क्यों मिल रही हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा जिसके अराउंड इंटेंसिटी होगी तो हम लाइंस को कंसिडर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस जो किसी एरिया या सरफेस में से फ्लो करती हैं, क्रॉस करती हैं, जब वहाँ पे चार्ज और उसकी इंटेंसिटी का भी होना जरूरी है, तो उन नंबर ऑफ लाइंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इट इज इटसेल्फ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज नंबर ऑफ लाइंस, ओनली अमाउंट इज हियर विच आर पासिंग, नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग और फ्लोइंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। और यूनिट ड्राइव करने के लिए हमने इसका फॉर्मूला ही यूज किया है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को रिजॉल्व करते हैं तो हमें एंगल लेना होता है कॉस थीटा।
Now theta. Theta is the angle between electric field lines and normal of the surface. Students, this angle is very important. With this, we will solve the maximum flux, zero flux, minimum flux. Mean types of flux are related to this angle. So theta is very important factor. It is angle, or it is the angle between electric field lines and normal of the surface. Look at here. Phi is equals to EA cos theta. Phi flux, phi stands for flux. E stands for intensity or force around the charge. A stands for area through which lines will pass or flow, or cos theta. Theta is the angle between electric field lines and normal of the surface. Now what is normal line? Normal line is a perpendicular line along the surface or at 90 degree according to the surface. ये एक लाइन होती है जो हम सरफेस को देख के ड्रॉ करते हैं और ये सरफेस के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे लाई करती है. सी है, अगर हमारी सरफेस अलोंग एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल लाइन अलोंग y axis. Now both are at an angle of 90 degree. Both are at an angle of 90 degree. ठीक है? This is the surface. This is the surface along x axis और this is the normal line. तो normal line एक लाइन है, 90 पे लाई करती है या परपेंडिकुलर होती है. किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सरफेस. अगर हमारी सरफेस along y axis है, surface is along y axis, तो normal line लाई करेगी along x axis. अब यहाँ पे भी normal line और surface both are at an angle of 90 degree. तो normal line एक line है, surface को देख के ड्रॉ की जाती है. surface अगर x axis पे है तो normal line को y axis पे होना चाहिए. सरफेस अगर y एक्सिस पे है तो नॉर्मल लाइन को x एक्सिस पे होना चाहिए. कहने का मकसद ये है, नॉर्मल लाइन इज अ परपेंडिकुलर लाइन अलोंग द सरफेस. तो यहाँ पे ओवरऑल जो फ्लक्स है, मीन फ्लो, विच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. कहाँ से फ्लो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने? थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से. तो नंबर ऑफ लाइंस जब किसी सरफेस से फ्लो करती हैं तो नंबर ऑफ लाइंस जो सरफेस से फ्लो कर रही हैं उसी क्वांटिटी को हम फ्लक्स का नाम देते हैं. फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई जो है वो डॉट प्रोडक्ट है चार्ज के अराउंड इंटेंसिटी का और सरफेस एरिया का. और यहाँ पे हमने फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस किया थीटा को. थीटा पे काम करना है इसलिए थीटा को अच्छी तरह समझना है. थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल ऑफ द सरफेस. अब नॉर्मल ऑफ सरफेस की बात आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम देख लेंगे. नॉर्मल ऑफ सरफेस की बात आ रही है तो हमें नॉर्मल लाइन को भी क्लियर करना है कि नॉर्मल ऑफ सरफेस क्या है. नॉर्मल ऑफ सरफेस एक लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, और ये सरफेस के अलोंग होती है. अगर सरफेस एक्स एक्सिस पे है तो नॉर्मल लाइन अकॉर्डिंग टू इट y एक्सिस पे होगी और अगर सरफेस y एक्सिस पे है तो नॉर्मल लाइन अलोंग x एक्सिस होगी. Now we will discuss types of flux. मैंने आपको बहुत डिटेल में फ्लक्स बता दिया कि फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड. इट मीन्स फ्लो. Now which type of flow? Flow of electric field lines. Where these lines will flow? These lines will flow through any surface. So when number of lines flow or pass through any surface, so this quantity we will call the electric flux. Flux is represented by phi, or it is the dot product of E and A. Or after resolving dot, formula is phi is equals to EA cos theta. Or theta is very important because we will have to explain the types in this way. There we have to work on theta. So theta is the angle between electric field lines and normal line. Now what is normal line? I told you before it. Or what are electric field lines? Those are imaginary lines, not real lines. Now come to the types of the flux. Types of flux, first of all, maximum flux. See here, this is the surface and this surface is along y axis. These all are the electric field lines. These are imaginary electric field lines
and these lines are flowing through this surface. We are discussing the maximum flux, or here flux maximum mean कि maximum lines will pass through this surface. Maximum number of lines pass through this surface. So look at here कि maximum lines, maximum imaginary electric field lines are passing through this surface. So this is maximum flux, और here surface is along y axis. सरफेस हमारे पास y एक्सिस पे है, लाइंस हमारे पास x एक्सिस पे हैं. तो अब क्या है कि हमने यहाँ पे प्रूफ करना है मैथमेटिकली कि फ्लक्स इज मैक्सिमम. उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू EA cos थीटा, और काम करना है थीटा पे. थीटा मैंने आपसे कहा एंगल है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल लाइन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये क्लियर नजर आ रही हैं. दीज ऑल आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. These all are flowing through this surface, or maximum flow of these lines is here through this surface. Maximum lines flow कर रही हैं surface से, तो हमने कहा flux is maximum. तो maximum lines pass हो रही हैं, और these all are the electric field lines, और these all are along x axis. अब यहाँ देखें, हमें थीटा के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेना है और नॉर्मल लाइन को लेना है. अब नॉर्मल लाइन तो नहीं है, तो नॉर्मल लाइन हम यहाँ पर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी सरफेस के अकॉर्डिंग होती है और परपेंडिकुलर होती है, 90 पे लाई करती है. अगर ये सरफेस अलोंग y एक्सिस है तो ये रही इसकी नॉर्मल लाइन विच इज अलोंग x एक्सिस. अब नॉर्मल लाइन और ये सरफेस दोनों किस एंगल पे लाई कर रहे हैं? बोथ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. बोथ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो सरफेस इज अलोंग y एक्सिस, नॉर्मल लाइन इज अलोंग x एक्सिस. बोथ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो थीटा है एंगल. देखिए थीटा को आप समझें, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दीज ऑल आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल लाइन. तो अगर मैं नॉर्मल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखूं तो ये दोनों पैरेलल हैं. ये दोनों पैरेलल हैं. याद रखें कि नॉर्मल लाइन पहले बनाना पड़ेगी, सरफेस को देख के बनानी पड़ेगी. सरफेस अगर y एक्सिस पे है तो नॉर्मल लाइन x एक्सिस पे बन गई नॉर्मल लाइन. अब थीटा को क्लियर करें. थीटा दो फैक्टर्स के दरमियान एंगल है. थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रही, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैक्सिमम फ्लो कर रही हैं सरफेस से. वैसे ही हमने कह दिया फ्लक्स इज मैक्सिमम, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ देना है फॉर्मूले के थ्रू. तो हमने कहा थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एंड नॉर्मल लाइन. तो ये रही नॉर्मल लाइन. तो नॉर्मल लाइन जो सरफेस के अकॉर्डिंग 90 पर है, सरफेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल लाइन 90 पे. तो थीटा एंगल है नॉर्मल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं. पैरेलल में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 0. ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और इस तरह हमारा आंसर आ जाता है phi इज इक्वल टू EA. तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि फ्लक्स इज मैक्सिमम. सो स्टूडेंट, दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स. phi इज इक्वल्स टू EA. तो आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा सरफेस y एक्सिस के अलोंग है, और दीज ऑल आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसमें फ्लो कर रही हैं, बिकॉज द वर्ड फ्लक्स मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी सरफेस, और मैक्सिमम लाइंस आर फ्लोइंग, मैक्सिमम लाइंस आर पासिंग, तो फ्लक्स इज मैक्सिमम. और मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हमने फॉर्मूले को फॉलो किया. फॉर्मूले में हमने थीटा पे काम किया. थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल लाइन. तो नॉर्मल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर पैरेलल, और इन बिटवीन देम देयर इज एंगल 0, cos 0 is 1, or in this way phi is equals to EA. This is the mathematical proof of maximum flux. Now the condition for zero flux. Look at here, this is the surface. This surface is along x-axis. These all are electric field lines, and only lines are in this way कि maximum lines are not passing through this surface. Surface से pass नहीं हो रही है maximum lines. So here they are saying कि surface is along x-axis, or these all are electric field lines, but maximum lines are not facing the surface. Only few lines are crossing here. कुछ lines हैं जो cross हो रही हैं. तो in this way what we have to do, we have to give it mathematical proof in this
So see here, this is the surface, this is along x-axis, or surface is along x-axis, so its normal line is along y-axis. Or here again we have to prove this zero flux, that lines are not flowing through this surface, so flux is zero. Or for mathematical proof we will use this formula, phi is equals to Ea cos theta. Here theta, again theta is the angle between electric field lines, these are electric field lines, and normal line, this is the normal line. So normal line or electric field lines, both are at an angle of 90 degree. Electric field line and this is the normal of the surface, both are at an angle of 90 degree or cos 90 is 0. So in this way flux is 0. तो हमारा flux हो गया 0. And the last type of flux is minimum flux. Minimum mean only few lines will cross through the surface. So here in this way theta is in between 0 and 90 degree, because I told you कि when theta is 0 between electric field lines and normal line, then flux is maximum. Maximum lines will pass through the surface. Or when theta is 90 degree, so at that time no lines will face the surface. Or when theta is in between 0 and 90, so only few lines will flow through the surface, or in this way flux will be minimum. तो student, I explained you flux. फिर से मैं बता देती हूँ, flux एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्लो. किस चीज़ का फ्लो? फ्लो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस कहाँ से हम ले रहे हैं? हम कहते हैं एक चार्ज की एबिलिटी है वो अपने अराउंड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि वेरिएबल फोर्स होती है और लिमिटेड होती है. तो चार्ज के अराउंड फोर्स और उसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करके हम इमेजिनरी लाइंस लेते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं. और लाइंस जब किसी सरफेस में से फ्लो करती हैं, नाउ हाउ मैनी लाइंस आर पासिंग, तो वो जो हमारे पास सरफेस में से लाइंस का फ्लो है उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. So flux is represented by phi. I told you phi. Or phi phi is a scalar quantity, or it stands for number of lines, electric field lines, according to the intensity around the charge, or those lines will pass through the surface area. The formula of flux is phi is equals to Ea cos theta. और यूनिट भी हमने ड्राइव की फॉर्मूले से. यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. फिर हमने टाइप्स को डिस्कस किया फ्लक्स की, लेकिन फ्लक्स की टाइप्स को डिस्कस करने के लिए हमें फॉर्मूले में जो थीटा है उसको क्लियर करना था कि थीटा किन दो फैक्टर्स के दरमियान एंगल है. थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल ऑफ द सरफेस, और सरफेस की नॉर्मल लाइन पर. फिर नॉर्मल लाइन क्या होता है वो मैंने आपको डिटेल में समझाया. फिर हमने टाइप्स में जो है वो देखा कि कब मैक्सिमम फ्लक्स है, कब ज़ीरो फ्लक्स है, कब मिनिमम फ्लक्स हो सकता है. और मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हमने थीटा पे काम किया, थीटा को चेक किया. अब थीटा पे काम करने के लिए आप थीटा को क्लियर करें. तो फ्लक्स के साथ हमारी जो इलेक्ट्रिक टर्म यानी चार्ज की जो टर्म है उसकी पूरी चेन कंप्लीट हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताई कि व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये पूरी एक चेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेन है. इस चेन की जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेंगी. आपको ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी को, और लाइंस को लेके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, लाइंस चार्ज बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती. ये सब मैंने आपको लेक्चर में बताया है. और ये भी आता है कि डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फ्लक्स क्या है, और इसमें इसकी कोई टाइप भी आ सकती है कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या है, ज़ीरो फ्लक्स क्या है. तो आपने इस पूरी चेन को एज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ योर पेपर इसको अच्छी तरह से याद करना है. इसमें तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगी और ज़रूर होती हैं, कोई ना कोई टर्म ज़रूर आती है. और ये चेन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इसको अपने ही सेकेंड ईयर के सिलेबस में कन्वर्ट करेंगे मैग्नेट के लिए. तो जब यहाँ पे आपको तमाम टर्म्स क्लियर होंगी तो मैग्नेट में बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएंगी. तो वो बात की बात है. तो यहाँ पे आप इस चेन को अच्छी तरह से समझ लें.